Hey guys, welcome back to my vlog. So today we are gonna talk about my bike and especially the honest review of my bike and about the first servicing. So it has run pretty much 641 kilometers so far and it has been going so far so good. So first of all, I don't know about the mileage, but I guess it's between 35 to 40, I guess. So let's talk about the bike. So we are now gonna talk about my bike. So first of all, मेरे सारे दोस्तों ने बोला हिंदी में बोलने के लिए, तो अभी से मैं हिंदी में बोलूँगा. सो गाड़ी अब तक सही चल रही है, बट कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हैं. लाइक इसका कोई फॉल्ट नहीं है, लाइक ड्यू टू द वेट ऑफ द बाइक. उसकी वजह से लाइक आगे पीछे करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि मैं बिगिनर हूँ. इसीलिए लाइक टाइम के साथ उसकी आदत हो जाएगी. फिर भी द वेट इज़ अ लिटिल बिट ऑन द हेवियर साइड. लाइक इट लेग गार्ड के साथ वो 210 kgs हो जाता है, और उसके साथ लाइक पिलियन को लेके तो लाइक और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. तो लाइक कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, लाइक गाड़ी को पीछे खींचने के लिए किसी और की ज़रूरत पड़ती है. वो सब तो होता रहता है. तो लेट्स टॉक अबाउट द बाइक. सो ही इज़ माई बाइक. जैसे कि देख सकते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी हो चुकी है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं. सो साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला. सो टॉकिंग इन डेप्थ अबाउट द बाइक, इट हैज़ अ 346cc एयर कूल्ड इंजन दैट प्रोड्यूसेस on an average 19.1 bhp, and it has completed 641 kilometers. So far my experience has been pretty good, but there is some problems with its gearbox, as like when it is in neutral gear, when I shift it downwards, like in first gear, कभी कभी लाइक वो शिफ्ट होता है, कभी कभी शिफ्ट नहीं होता है. लाइक इट यूज टू स्टक इन द न्यूट्रल गियर. तो उसके लिए थोड़ा सा थ्रॉटल दे के फिर फर्स्ट गियर में जाता है. लाइक इट्स द जनरल इशू इन ऑल द रॉयल एनफील्ड्स, लाइक द 350cc स्पेशली. So, and talking about the brakes, it has a great set of Biber brakes that perform extremely good. And if anyone has any doubt, like ये alloy wheels हैं, like, and these are the same alloy wheels that are used in the Royal Enfield Thunderbird 350X that has been discontinued by now. Wait, I will show you. So here is the Royal Enfield 350X, and it has the same set of tires, as you can see, and it has a pretty good set of suspensions. Like it is, I can say, the best for our Indian roads, like in the potholes and ये सब में like it performs exceptionally well. And I think the fit and finish could have been better. And the engine, like it is a cruiser type engine, so it cannot like if you see the 350cc, like the engine displacement tag, it can go up to like 130 kilometers top. That's the top speed. And talking about the headlight, it is a halogen setup, and I'm thinking of changing that into an LED one. So if you think I should change that or not, please comment down below. And it produces a decent visibility, and rather than the like जो सब BS4 के गाड़ी थे उसमें क्या चाबी ऑन करते ही लाइक द हेडलाइट यूज टू स्टार्ट, बट अभी BS6 में जस्ट द पार्किंग बल्ब बस शुरू होगा. देख एक सेकंड. See, just the parking bulb is gonna start, and when you start the bike, उसके बाद ही इसका मेन हेडलाइट स्टार्ट होगा. So I will show the compartments in this bike. Here is the first compartment. So it is not a compartment, it's the air filter box, so you can't keep anything here. And talking about the second compartment, it has a little bit of space, like you can keep your registration papers and all. Here is the toolbox.
this is the fuse box. This is the fuse box, and this is another addition to the BS6. This is the cable for the to connect to the ECU during the time of servicing, and this is the battery box that has the battery, obviously. This is the grab rail for putting into the main stand, obviously, because it is such a long bike, so you cannot just grab the bike and put it in the main stand. एंड सो जिसको भी इसका स्टॉक एग्जॉस्ट का साउंड सुनना था, सो हियर यू गो. लेट्स लेट इट वार्म अप फॉर अ बिट. एंड यू कैन सी द वाइब्रेशंस, लाइक you can see the vibrations in the mirror. It has a lot of vibration, but it has reduced in comparison of BS4. बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लाइक सुबह सुबह जब गाड़ी फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है. सो द बाइक यूज टू लाइक सब रॉयल एनफील्ड भी सजेस्ट करता है कि यू शुड डू द किक स्टार्ट फर्स्ट. सो बहुत लोगों का लाइक स्टार्ट नहीं होता फर्स्ट किक में. सो आई एम गोना शो यू कैसे फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट क्लच लीवर को 5-6 बार प्रेस करना है. 1 2 3 4 5 6. देन उसके बाद क्लच को पकड़े हुए 5-6 बार फॉल्स किक मारना है. देन किल स्विच को ऑन करना है, ऑफ करना है, सॉरी. देन एक ही बार में स्टार्ट हो जाना चाहिए. देखा, फर्स्ट किक में स्टार्ट हो गया. सो टॉकिंग अबाउट द सर्विसिंग, इट टुक अराउंड 3 to 4 hours. लाइक दिन के 11 बजे गया था, अराउंड 4 वो कंप्लीट हो गया था. सो इट वॉज लाइक चलेगा, लाइक इट वॉजंट द बेस्ट, बट देखते हैं. Let's see how much it costed us. So here is the bill. So it costed me 979 rupees for the first servicing, which included a chain lubrication and slack adjustment, liquid gun, semi-synthetic engine oil, and the engine oil filter and the O-ring kit. So here you can see the total plus the tax. You can see the exact prices. तो जब से मैंने बाइक लिया था, एक चीज़ मेरे को तब से करना था कि ये दो मिरर्स निकालने थे. ये दो मिरर्स बहुत लाइक ये लुक को थोड़ा सा कम कर रहे हैं. सो फाइनली आज मुझे टाइम मिला मिरर निकालने के लिए. सो लेट्स डू इट. सो मिरर निकालने के लिए रॉयल एनफील्ड का टूल बॉक्स से ही हो जाएगा. इधर ही होता है ये वाला. तो इसमें सारे इक्विपमेंट्स होंगे, आई गेस. देखते हैं क्या होता है. सो दिस इज़ ऑल यू गेट विद द किट. ये सब इस किट में मिलते हैं. सो देखते हैं कौन से मिरर खुलता है. सो इस 14 नंबर से शायद तक खुल सकता है मिरर. यस. सो मिरर निकालने के बाद दिस इज़ द लुक. क्या ही लग रहा है, ओ माय गॉड. सो जैसे सोचा था वीडियो तो ऐसा गया नहीं. आई हैड टू स्क्रैप अप द होल वीडियो. लाइक सब कुछ चेंज हो गया. लाइक एक प्रॉब्लम की वजह से सब कुछ वीडियो चेंज हो गया. लाइक आई वाज गोना से कि रॉयल एनफील्ड का सर्विसिंग लाइक इट वाज मॉडरेट एंड ऑल चलेगा. सो व्हाट हैपेंड इज कि जो फ्रंट सस्पेंशन है और जो मडगार्ड उस बीच में जो गैप है, तो दैट वाज ऑफ सेंटर. सो मैंने फर्स्ट सर्विसिंग के टाइम पे मैंने उस लाइक जो रिपेयर करा था उसको मैंने बताया, तो उसने बस ऐसे मार के एक साइड में कर दिया. तो आफ्टर दैट सब कुछ हमें चलने के बाद तो उसमें हुआ क्या कि वो एक साइड को बेंड हो गया, जिसकी वजह से एक सस्पेंशन का पूरा कलर फेड हो गया. लाइक कलर स्क्रैच हो गया, पूरा कलर निकल गया. आई विल शो यू लाइक इन द नेक्स्ट सीन. वेट अ मिनट. एज यू कैन सी हियर इज़ द स्क्रैच मार्क्स. लाइक यू कैन सी हियर क्लियरली इन दैट इनसाइड पार्ट, एंड हियर इज़ द नियर द टैंक एरिया, दिस पार्ट. सो उसकी वजह से क्या हुआ कि इट वॉज लुकिंग वेरी बैड. सो मैंने सर्विस सेंटर गया,
एंड आई आस्क्ड देम टू रिपेयर दैट, मतलब अलाइनमेंट ठीक कर दो और थोड़ा सा कलर का टचअप कर दो। दे वर सो एरोगेंट दैट दे सेड कि हाँ हम अलाइनमेंट कर देंगे लेकिन कलरिंग का आप देख लो, आपको उसके लिए चार्जेस पड़ेंगे। लाइक द फॉल्ट वाज देयर, उनका फॉल्ट था, लेकिन उसके लिए लाइक उसके लिए उस रिपेयर के लिए पेमेंट हमको करना पड़ा। तो उसने बोला कि जिसको लेटर लिखना है लिखो, हम कुछ नहीं कर सकते। सो उसके बाद वाले दिन मैं गाड़ी लेकर घर आया, तो मैंने एक कंप्लीट लेटर लिखा रॉयल एनफील्ड को, जिसके वजह से उसके बाद वाले दिन सुबह मेरे को रॉयल एनफील्ड से कॉल आया और उन लोगों ने मेरे को बुलाया कि आप सब सेंटर आइए, जो भी प्रॉब्लम है हम रिजॉल्व करते हैं। मैं उनको गाड़ी का जो भी प्रॉब्लम बताता हूँ वो हर बार एक ही रीज़न देते हैं कि ये तो रॉयल एनफील्ड है, ऐसा होता रहता है, अब हम क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। तो हमने भी पूछा अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कीजिए ना, इसके लिए कंज्यूमर को क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उसके बाद उसने वो देखा, फिर बताया कि हम अलाइनमेंट कर देंगे, क्या कलरिंग देखते हैं, ऐसा हुआ। तो फिर से वो वो आर्ग्यू करने लगा, वो बात सुनने को रेडी नहीं था। फिर कुछ समय बाद वो फाइनली अग्री किया कि सस्पेंशन का पार्ट को कलर करते हैं, बट मडगार्ड का एक साइड उसका कलर फेड हो गया, लेकिन उसने उसको कलर नहीं किया। वो बोला कि चलेगा, अब हम कितना ही उसको कितना ही मैं फोर्स करूँ। तो मैंने बोला छोड़ो जाने दो। तो वो सस्पेंशन का पार्ट कलर होने गया है। और गाड़ी के एक चेक इंजन लाइट बार बार बीच में जलता है, बीच में फिर बंद हो जाता है। तो मैंने ये प्रॉब्लम बताया, तो उसने बोले गाड़ी रख के जाना पड़ेगा। तो मैं गाड़ी छोड़ के आया, 2 दिन हो चुके हैं गाड़ी जाने को। तो आज हम जाके गाड़ी का डिलीवरी लेंगे फिर से, मतलब सर्विसिंग के बाद का। तो देखते हैं प्रॉब्लम रिजल्व होता है या नहीं। सो चलिए रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर चलते हैं, देखते हैं कितना कुछ काम हुआ है, क्या हुआ है, देखते हैं। सेकंड सर्विसिंग के बाद जो कलर हुआ देखिए, लाइक इट डजेंट इवन मैच। देखिए एक ग्लॉसी हो गया, एक मैट दिख रहा है। और मडगार्ड का तो कुछ कलर किए ही नहीं है वो लोग। So that was my worst experience with the Royal Enfield Service Center, and I will keep you updated if future में कुछ इसका रिजॉल्व हुआ, लाइक कुछ और प्रॉब्लम्स निकले तो देखते हैं क्या होता है। So let's end the video. Thanks for watching. Please like, share and subscribe, and the link to my Instagram is in the bio. Bye bye.